हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले कि मैं द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो दैट इज सीक्रेट रिवील्ड डिजीज और मेंटल एंड इमोशनल जो इश्यूज ह्यूमैनिटीज को आजकल खाए जा रहे हैं उसके सीक्रेट्स के बारे में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बात किया था। नाम था उस वीडियो का द सीक्रेट इज रिवील्ड। अब इसका पार्ट 2 में हम ये बताएंगे आपको कि कैसे ये जो थॉट है आपका, कैसे ये आपकी बॉडी को, पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करता है एंड इट डिटरमिन्स हाउ यू फील डे एंड नाइट। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि एज थॉट कम्स our neurons in the form of electrical pulse, they receive that signal thought और वो it spreads to the whole neural network and that signal is given to hypothalamus gland. Hypothalamus gland in turns gives this signal to its associate, the another gland called pituitary gland, which is located in the crown chakra. From there, neuropeptides based on the signal received, thought process received, and then it is given to the endocrine system, the gland system. Now, the glands, the endocrine system, they generate hormones based on or incommensurate with whatever thoughts have been seen by the brain. No, the hormones, because if the thought is negative, definitely the hormone generator will be bad. So these bad hormones, they goes to the cells, and then at the receptor outside the cell there are receptors. It comes there. It gets themselves anchored there, and the signal is received by the cell. Cell is an environment which is doing its function, normal functions. It is producing proteins. It is all those chemical reactions, biochemical reactions are happening in a beautiful way. But as soon as the hormones brings the impending danger, the information is about the impending danger, what happens? The whole environment of the cells is disturbed. Now, the DNA in the cells, its function was to generate 140,000 proteins. Now what it does, the very process of generating proteins, producing proteins is disturbed. So what happens now? The cheaper proteins are produced, the disease proteins are produced. And you know the basis of human body is the cells, जिसको कोशिकाएं बोलते हैं. We are made up of cells. Cells combine होकर बनता है tissues, and tissues in turn becomes our organs. Organs are systems. अब देखिए, एक नेगेटिव थॉट आया, उसके कारण नेगेटिव हार्मोन्स जनरेट हुए, बैड हार्मोन जनरेट हुए, दैट हैज डिस्टर्ब द होल एनवायरनमेंट ऑफ सेल. अब ये सेल्स तो दिस इज एवरीवेयर इन आवर बॉडी. अगर हेयर के सेल्स हैं तो बैड प्रोटीन वहाँ जनरेट होंगे. तो व्हाट विल द इफेक्ट विल बी ग्रेइंग ऑफ हेयर और फॉलिंग ऑफ हेयर. तो समस्या जो डिजीज है वो समस्या नहीं है. समस्या है द रूट काज इज बेसिकली थॉट्स which have been generated, and accordingly what are biochemical reactions that are happening in the body, they ultimately are influencing our cells. अब इसका मतलब है कि अगर सपोज करिए हार्ट के सेल्स हैं, लंग्स के सेल्स हैं, दैट मीन्स देयर आल्सो चीपर प्रोटीन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड दे अल्टीमेटली इफेक्ट दोज ऑर्गन्स आल्सो. किडनीज हैं, किडनीज के सेल्स इफेक्ट होते हैं, आपके मसल्स के सेल इफेक्ट होते हैं. ये सारी चीजें होने लगती हैं. और फिर जैसे बॉडी ये फील करता है, दिस फीलिंग इज अगेन ट्रांसफर टू द ब्रेन, that again this process gets repeated
again negative hormones are generated, again cell में produce होगा. So if these things continues, और ये मतलब if these things are repeated, if these thoughts persist, the negative thoughts persist over a period of time, so they ultimately start affecting our organs. एंड इस तरह का अगर कहीं 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल हम लोग इन थाट्स से, इफ वी आर हैविंग दोज थाट्स, व्हाट विल हैपन? ऑर्गन विल स्टार्ट गेटिंग इफेक्टेड. नाउ रादर देन थिंकिंग फ्रॉम द ब्रेन, नाउ feeling will come from the body actually. It is paining, it has some problem, some issues, joint problem is there, hair graying is there, then some heart issues are there, आपके digestive problems हैं, आपके excretory problems हैं. तो all those problems will start happening and then you will have a very different feelings. And that feeling also affects your heart consciousness also. तो ये तो एक पार्ट हुआ, आपका फिजिकल बॉडी आपकी इफेक्ट हो रही है. और फिजिकल बॉडी इफेक्ट हो रही है तो आपके जो हार्मोन्स हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन जनरेट होने चाहिए, वो भी जनरेट नहीं हो रहे हैं. अब इसका दूसरा पार्ट हम बताते हैं. दूसरा पार्ट ये है कि जैसे ये क्योंकि ये जो जब हम नेगेटिव थॉट्स जनरेट करते हैं तो ये सिचुएशन होती है फाइट एंड फ्लाइट वाली. तो I'll tell you कि हमारा जो गट है, which consists of all digestive organs including intestines, large and small intestines, ये सारे organs जो हैं हमारे गट के, they get the maximum oxygen in normal circumstances. About 70 to 80% of the blood is transferred to the gut. लेकिन इस केस में क्या होता है? इस केस में जैसे ही हमें थॉट जाता है, नेगेटिव थॉट जाता है या थोड़ा fearful या डेंजरस थॉट जाता है, तो what happens? Now the adrenal gland, it generates hormone that actually there is a danger. और नेगेटिव हार्मोन भी जनरेटेड, नो सेल्स का एनवायरनमेंट चेंज हो गया और उधर से द ब्लड टू द गट हैज बीन स्टॉप्ड बिकॉज नो दिस ब्लड इज रिक्वायर्ड समवेयर एल्स. फाइट एंड फ्लाइट मोड में बॉडी हैज टू रन अवे, उसको एनर्जी चाहिए. एनर्जी चाहिए तो क्या होगा? नो द सिस्टम विल डायरेक्ट लिवर को ये बताएगा वी सीक्रेट मोर शुगर इनटू द ब्लड स्ट्रीम बिकॉज नो नॉट ओनली ब्लड इज रिक्वायर्ड, sugar is also required because energy is required. So more sugar will be generated by the liver into the bloodstream. At the same time, it instructs our pancreas also to reduce production of insulin. Now they want more sugar in the bloodstream so that the person can run or fight or run away. For that both blood, more blood is required and more sugar is required. Fight and flight. इस प्रोसेस में क्या होता है? Because in the older times, our humans, they were under the constant danger of attack by the predators. तो उनको हमेशा ये डर लग रहा था कि कोई ना कोई जानवर या कोई predator या कोई man-eaters, they'll be after them. So liver used to release more sugar in their bloodstream and there was lower production of insulin so that they always have the resources, energy to run away or fight with the predators. लेकिन आजकल के मॉडर्न ज़माने में क्या है? Sugar is being released in the bloodstream. Insulin is reduced, sugar is increased, but we are neither fighting nor running away. तो उससे क्या होता है? आपकी डायबिटीज it becomes, we are not utilizing that energy, तो डायबिटीज प्रोड्यूस होगी क्योंकि गट में आपके ब्लड नहीं जा रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉब्लम हो गया, आपकी एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई क्योंकि आपकी गट में प्रॉब्लम है. आपको मैं बता दूं कि 70 to 80% गुड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स एंड हैप्पी हार्मोन्स आर जनरेटेड इन द गट इटसेल्फ. गट खराब हुआ तो उससे क्या हुआ?
आपके हार्मोन सीक्रेट होना भी बंद हो गए, कम हो गए। तो आपके साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम भी शुरू हो गई, आपको इंसोमेनिया होना शुरू हो गया, आप आपका मूड खराब रहता है, एंग्जाइटी आपको घेर लिया है, डिप्रेशन आपको घेर लिया है, बिकॉज ऑफ लोअर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स एंड ऑल दीज हार्मोन्स। तो देखिए कितने इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपके सेल्स जो हैं दे आर जनरेटिंग cheaper proteins or disease proteins. It affects your immunity also. Immunity because it produces antibodies. अब एंटीबॉडीज भी आपके इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। एक तरफ आपके सेल्स खराब हो रहे हैं, उसको फाइट करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम होना चाहिए, बट ये भी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज एंड disease proteins and cheaper proteins, your antibodies are also affected. अब इन एंटीबॉडीज को ये पता नहीं ये करें क्या, मतलब फाइट करती हैं, दे फाइट फॉर 3-4 years, 5 years, 10 years, then after that three things happens. Either they get suppressed, ये आपके इम्यून सिस्टम भी आपका सप्रेस होना शुरू हो जाता है, और फिर ये सारी डिजीजेज जो हैं जब सप्रेस ही हो गया तो दैट मीन्स जो सेल्स में अंधाधुंध जो आपकी प्रोडक्शन हो रही हैं वो उसको स्टॉप करने के लिए कोई नहीं है। दैट इज वाई इट गिव्स राइज टू कैंसर एंड सो मेनी डिजीजेज। फिर दूसरा जो है आपका, ये कभी कभी वो ओवर एक्ट भी करता है, समटाइम्स इट ओवर एक्ट्स दिस एंटीबॉडीज, योर इम्यून सिस्टम ओवर एक्ट करेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फाइट करना है जो शरीर में प्रॉब्लम चल रही है। हमारे इम्यून सिस्टम का इशू क्या है, इट वॉन्ट्स टू मेक अवर बॉडी हेल्दी। अब बॉडी में तो बहुत सारा मतलब ड्रामा चल रहा है, तो कैसे होगा, इट स्टार्ट्स ओवर एक्टिंग। इसलिए एलर्जीज जैसी जो इश्यूज है ये सारे होना शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शंस, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ऑल दिस थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। तीसरा ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको पता ही नहीं है कि करें क्या, कभी सेल्स में प्रॉब्लम हो रही है, कभी ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, इट गेट कंफ्यूज्ड। और कंफ्यूजन में क्या होता है, इसको मारना चाहिए खराब सेल्स को या बैक्टीरियाज को, और कभी भी कंफ्यूजन में ये हेल्दी सेल्स को भी मारना शुरू कर देता है। तो बहुत सारी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जो इम्यून रिलेटेड डिजीज है, दिस स्टार्ट्स हैपनिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही थोड़े से शब्दों में आपको बताया है कि थॉट्स कैन मेक और मार योर लाइफ। ये आपकी लाइफ को कहाँ तक ले जा सकता आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो जब भी आपका थॉट्स आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स है, जहाँ थॉट्स ऐसा है जो आपको सैडिस्टिक एटीट्यूड की तरफ ले जा रहा है, जहाँ आप यू आर नॉट फीलिंग गुड, चेंज योर एंकर्स। एक्चुअली आप थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपको लोनलीनेस पसंद है, आपको मन नहीं कर रहा, आपको खराब लग रहा है, आप यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, व्हाट शुड यू डू, आपको यू शुड टर्न योर अटेंशन समवेयर एल्स। एक्चुअली आपको यू शुड सी कॉमेडी सीरियल्स, थोड़ा सा मजाकिया चीज़ें देखिए, फ्रेंड्स के साथ मिलिए, डू समथिंग विच इज यू आर नॉट डूइंग नाउअडेज। आप ऐसे मोमेंट्स के बारे में सोचिए जब आप बहुत खुश होते थे। थिंक अबाउट योर चाइल्डहुड, कैसे आप खुश रहा करते थे। उन सारी चीज़ों का अपने अच्छा खाना खाइए, बी हैप्पी, गो आउटिंग करिए, गो टू द पिकनिक। तो इस तरह की चीज़ें करिए, और थोड़ा सा क्योंकि यू हैव बीन एंकर्ड समवेयर, आप कहीं ना कहीं चीज़ों से अटैच्ड हो गए, अब वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके एंकर्स चेंज करने हैं। अगर आप घर में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बाहर जाइए, घूमिए, वॉक करिए, रन करिए, एरोबिक्स करिए, योगा करिए, ब्रीदिंग करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं मेडिटेशन में जाना, मेडिटेशन में जाइए। अगर आपको लग रहा है कि स्पोर्ट्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलिए। अगर आपको लग रहा है कहीं बाहर घूमने जाना है, पहाड़ों में जाना है, कहीं जाना है, कहीं बीच पे जाना, जाइए वहाँ पे, एन्जॉय। चेंज योर एंकर्स। जैसे जैसे आप एंकर्स चेंज करते चले जाएंगे तो आप slowly you will come out of these things. So friends, thank you so much for watching this video. These are secrets why we have psychosomatic problems. और आजकल देखिए OCDs, ये वो, autoimmune disorders, anxiety, depression, ऐसी डिजीज आ रही है which are not actual diseases.
ये दिस इज बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस ओनली। सो उस थॉट्स को बदलिए, जिंदगी बदलिए, और अपना पूरा बॉडी का जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है उसको बदलिए आप जो है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and keep on watching my videos. Thank you.